Instruction formats. We are going to discuss instruction formats as this chapter consists of addressing modes and instruction formats. We already know what is an instruction format. It is the layout of bits in an instruction. That means how the bits are organized in an instruction. An assembly language instruction consists of opcodes and means opcode and operands. There may be 0 operand, 1 operand, 2 or 3 operands, as we have discussed that there may be multiple operands or there may be no operand. Usually there are more than one instruction format in an instruction set. First of all, हमें ये पता होना चाहिए कि instruction set क्या चीज़ है. If you remember, instruction set is the set of all instructions recognized by a CPU. किसी भी CPU के जितनी भी instructions है जिनको वो execute कर सकता है, जिनको वो recognize करता है, they are included in the instruction set of that CPU. And how those instructions are designed, what does each and every bit in the instruction means is called the instruction format. अब ये bits जो है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं. एक्चुअली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो जब असेंबलर जब प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखता है तो दैट इज इन द assembly language, but that instruction is converted into machine code and obviously उसको machine code में convert होना होता है. machine code में convert होने के बाद ही वो instruction processor को के लिए understandable होगी, क्योंकि whatever is in the binary form is understandable by the processor and whatever is not in the binary form it cannot be understood by the processor. So instruction format means your layout of bits, how the bits are organized in an instruction. For example, अगर कोई 16-bit instruction है तो उसमें bit number 0 का क्या काम है और output के लिए कितने bits जो हैं वो allocated हैं, उस instruction के अंदर operands कितने हैं, कितने bits operands के लिए allocated हैं. So we are going to discuss these things. First of all, we will discuss some design issues related to the instructions and then we will come to the examples of practical instruction formats. First of all, we look at the instruction length. Instruction length means ke, is the length of instruction 16-bit or 32-bit or 20-bit or whatever the length. What does it mean? कि instruction की जो length होगी उसका पूरे instruction set पे और उसके processor design पे क्या effect होगा. Number 1. Instruction length is affected by and affects. Affected by means that these features can affect the instruction length. इनकी वजह से instruction length reduce भी हो सकती है और increase भी हो सकती है. And affects और instruction length का reduce होना या instruction length का ज़्यादा होना इन सारे features को भी affect कर सकता है. Means कि this is vice versa. Let's take an example of memory size. Right? अब memory size is affected by the instruction length and it also affects the instruction length. अगर memory का size larger है, we have a large memory, we have a huge memory, तो क्या होगा? We can handle for example 32-bit instructions easily. For example, this is a 32-bit instruction. Let's say 32-bit, and let's say half of it is the 16-bit instruction. So this instruction has a shorter length, 16-bit instruction, and this instruction has a longer length. अगर हमारा memory size ज़्यादा है, we have a huge memory, we can handle these instructions easily and these instructions more easily. ठीक है? तो it is affecting the memory. और अगर हमारी memory का size कम है तो it is easy for us to handle this instruction, but it would be difficult for us to handle this instruction. इस instruction को memory में store करवाना, वहाँ से load करवाना, ये सब हमारे लिए processor के लिए जो है वो processor की performance को
अफेक्ट करेगा, मीन्स कि इंस्ट्रक्शन लेंथ अफेक्ट्स द मेमोरी साइज। ठीक है, मेमोरी को अफेक्ट कर रही है। मेमोरी साइज को किस तरह से अफेक्ट कर रही है? अच्छा, एंड अफेक्टेड बाय का क्या मतलब हुआ कि यही वाली चीज़ कि अगर हमने इंस्ट्रक्शन का साइज हमारा लॉन्गर है तो वो मेमोरी में हमें उसको स्टोर करवाना और वहाँ से लोड स्टोर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। मीन्स इट विल रिक्वायर 2 साइकिल्स। इट विल इफ वी से कि 16 बिट इंस्ट्रक्शन को एक साइकिल रिक्वायर्ड है तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे और मेमोरी से फैच होने के लिए भी 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सो इट अफेक्ट्स द मेमोरी साइज एंड इज अफेक्टेड बाय द मेमोरी साइज। एंड देन अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द मेमोरी साइज। उसमें क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ 32 बिट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑपकोड देखें, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास 4 बिट ऑपकोड है। ये दिस इज ऑपकोड 4 बिट एंड रिमेनिंग हमारे पास कितने रहेगा? 28। तो ये हमारे पास हो गया 14, हमारे पास हो गया 14। ठीक है, और अगर हम इसमें कहें कि हमारे पास 4 बिट ऑपकोड है तो हमारे पास 6 bit operands रह गए। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट 4 bit opcode, 14 bit operand, 14 bit operand, 4 bit opcode, 6 bit operand, 6 bit operand, 2 operands ये हैं हमारे पास, 2 operands ये हैं। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि आपका जो ऑपरेंड का साइज है वो भी मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है। मीन्स दिस ऑपरेंड साइज नीड्स मोर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी साइज को कैसे अफेक्ट करेगा? इंस्ट्रक्शन लेंथ मेमोरी साइज को कैसे अफेक्ट करेगी, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दिस ऑपरेंड रिक्वायर्स मोर स्पेस इन मेमोरी एंड दिस ऑपरेंड रिक्वायर्स लेस स्पेस इन मेमोरी। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ऑपरेंड्स, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द लेंथ ऑफ ऑपरेंड्स इन द इंस्ट्रक्शन इज अफेक्टिंग द मेमोरी साइज। मीन्स वी नीड स्मॉलर मेमोरी और लार्जर मेमोरी, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, और फिर अगर हम उल्टा इसको कर लें, वाइस वर्सा कर लें, तो हम ये देखेंगे कि जितना हमारा मेमोरी साइज होगा उस हिसाब से हम अपने ऑपरेंड्स को डिज़ाइन करेंगे। अब ये है कि हमारे पास इतनी मेमोरी ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी का साइज कम है और हम डिज़ाइन कर रहे हैं ऑपरेंड्स 20 बिट के, तो हमारे लिए ये हमारी कहेंगे कि लैक ऑफ टेक्निकलिटी होगा कि हमें हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर मेमोरी साइज हमारा कम है तो वी विल टेक लेस नंबर ऑफ बिट्स फॉर ऑपरेंड। सो दीज आर द ट्रेड ऑफ्स। फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट करती है इंस्ट्रक्शन लेंथ को एंड इंस्ट्रक्शन लेंथ अफेक्ट करती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। ये बहुत आसान सी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेट्स से like this, and we say that each of the memory cell is of 16 bit। ठीक है, हर सेल जो है वो कितना है, उसका साइज, सेल हर मेमोरी सेल का साइज है 16 बिट। तो क्या होगा, अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन है तो इसको एक साइकिल चाहिए फैच होने के लिए। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन है तो वो यहाँ पे और यहाँ पे स्टोर होगी, दो जगह, दो सेल्स में स्टोर होगी और इसको फैच होने के लिए 2 साइकिल्स चाहिए। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगी इंस्ट्रक्शन लेंथ, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शन लेंथ पे डिपेंड करेगी। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास 32 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो फिर मैं इसको डबल कर देती हूँ। मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लूँ मेमोरी को कि एक एक 16 बिट का सेल मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। ये भी 16 16 32 हो गया, ये भी 16 16 32 हो गया और 16 16 32। तो ईच सेल इज ईच मेमोरी लोकेशन इज नाउ 32 बिट। तो फिर क्या होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारी वो एक ही साइकिल में फैच होगी, एक साथ ही मेमोरी में ये ऐड हो जाएंगी। राइट, so this is the effect of memory organization
on instruction length and the effect of instruction length on memory organization. Then bus structure, बस स्ट्रक्चर की भी यही एग्जांपल है कि अगर बस हमारी 16 बिट है और हमारी इंस्ट्रक्शन 32 बिट है तो बस विल नीड 2 साइकिल्स टू कैरी दिस इंस्ट्रक्शन. अगर बस हमारी 16 बिट है और हमारी इंस्ट्रक्शन भी 16 बिट है तो इट विल नीड 1 साइकिल टू फैच द इंस्ट्रक्शन. तो ये भी हमारी जो है वो इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को. देन सीपीयू कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इंस्ट्रक्शन लेंथ ज़्यादा है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो सीपीयू को इसको डिकोड करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, सीपीयू कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा ये 14 बिट ऑपरेंड के लिए यूज़ हो रहे हों. देयर आर डिफरेंट टास्क दैट कैन बी असाइन टू दीज बिट्स. ठीक है, इनके अभी हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट बिट्स हैव डिफरेंट मीनिंग. तो उसके लिए फिर प्रोसेसर को ज़्यादा एफर्ट भी करनी पड़ती है. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही प्रोसेसर को उसके लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी. देन सीपीयू स्पीड, और फिर जाहिर है लार्ज लॉन्गर लेंथ इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू स्पीड को भी अफेक्ट करेंगे. सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन पावरफुल इंस्ट्रक्शन रिपर्टोय एंड सेविंग स्पेस. मीन्स कि आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन करना होता है जो कि पावरफुल भी हो, यानी कि आपके सारे टास्क जो है वो एफिशिएंटली भी कंप्लीट हो रहे हों और आपकी स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो रही हो. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन लेंथ. नाउ एलोकेशन ऑफ बिट्स. एलोकेशन ऑफ बिट मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन की अभी हमने बात की है उस इंस्ट्रक्शन में बिट्स जो होंगे उनको क्या चीज़ क्या फंक्शन एलोकेट किया गया होगा. जैसे हम कहते हैं ना 4 बिट हमने ऑपकोड को एलोकेट कर दिया. 4 बिट जो है वो हमारे ऑपरेशन को शो करेंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बिट जो है वो ऑपकोड और ऑपरेंड्स को ही शो कर रहा हो. देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज. तो हमारे जो बिट्स हैं वो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को भी शो कर सकते हैं. डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, एड्रेसिंग मोड्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि विच ऑपरेंड इज यूजिंग विच एड्रेसिंग मोड. कि अगर 2 ऑपरेंड्स गिवन है तो हो सकता है उसमें से एक ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर एड्रेसिंग यूज कर रहा हो और दूसरा ऑपरेंड जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज कर रहा हो. ठीक है ना, मतलब रजिस्टर एड्रेसिंग का मतलब है कि वो ऑपरेंड रजिस्टर में स्टोर हो और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि दूसरा ऑपरेंड मेमोरी में स्टोर हो. नंबर ऑफ ऑपरेंड मीन्स के हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर देयर और उनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है. देन रजिस्टर वर्सेस मेमोरी के हम रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं ऑपरेंड्स करने के लिए या मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं. देन नंबर ऑफ रजिस्टर सेट्स, हाउ मेनी रजिस्टर सेट्स आर देयर मीन्स कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं इनकी बात हो रही है यहाँ पे. तो उसके लिए भी हमें बिट्स को एलोकेट करना पड़ता है. वी नीड टू शो द रजिस्टर सेट थ्रू द बाय एलोकेटिंग बिट्स. देन एड्रेस रेंज हमारी क्या है, मीन्स कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो कहाँ तक हम शो कर सकते हैं, कितनी रेंज है उसकी. एंड एड्रेस ग्रैन्युलैरिटी. So this is the PDB-8 instruction format. These are the uh, older version of a processor in which the instruction format is shown here. कि ये एक instruction format है practical processor का, right? और इसमें आपको different fields नजर आ रही हैं. ठीक है, this is the opcode field. 0 1 2 means this is the 3-bit opcode field. Okay, and D and I, this bit number 4. ठीक है ना, 0 1 2 3 means bit number 4 is showing that which addressing mode is used here. ये bit बता रहा है आपको कि direct और indirect which addressing mode is used, यहाँ पे आपको बता रहा है. Then this bit number 5 is telling you page 0 और current page means which page of memory we are using. मेमोरी का पेजिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने कवर नहीं किया, बट मेमोरी में एक पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं पेजेस में. तो ये वो कॉन्सेप्ट है. देन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स में कि डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन होगी, उसको हम बेस रजिस्टर के साथ ऐड करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन होगी.
ठीक है। तो दिस इज अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसी तरह इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल गिवन है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में क्या है आपके पास, ये ऑपकोड जो है वो आपका बिट नंबर 9 to 11 में शो होगा। आपकी जो डिवाइस है यानी उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे शो होगा, और आपकी ये डिफरेंट दूसरे बिट्स के लिए इनडायरेक्ट बिट्स हैं ये। ठीक है, ये किसी भी ग्रुप 1 0 1 1 ग्रुप 1 माइक्रो इंस्ट्रक्शन को ये शो कर रहे हैं। ठीक है, and then means these bits may be used for other random purposes. Register reference instructions। अब register reference instructions भी क्या है आपके पास, कुछ दूसरी माइक्रो इंस्ट्रक्शन शो हो रही हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड का पर्पज ये नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी फील्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस स्लाइड इज जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है कि जो हमारे बिट्स हैं वो इस तरह से एलोकेटेड होते हैं। ईच एंड एवरी बिट इज एलोकेटेड, मे बी एलोकेटेड फॉर अ डिफरेंट पर्पज। देन ये एक और PDP-10 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। दीज वर द ओल्डर प्रोसेसर्स। ये एक x86 के दौर के प्रोसेसर्स थे, लेकिन ये इंटेल के नहीं थे, किसी और कंपनी के थे, तो इस वजह से इनका जो है वो नाम ये वाला PDP-10 है। ठीक है, डिजिटल प्रोसेसर्स नाम से एक कंपनी थी। ऑपकोड पर्सनल डिजिटल प्रोसेसर्स, यस आई गेस पर्सनल डिजिटल प्रोसेसर था, तो ये PDP-10 इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या है, 0 to 8 बिट नंबर 0 to 8 इज शोइंग द ऑपकोड, 9 to 12 इज शोइंग द रजिस्टर। रजिस्टर का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि विच रजिस्टर इज टू बी यूज्ड, कौन सा रजिस्टर यूज होना है, उस रजिस्टर का जो कोड होगा बाइनरी में, वो कोड यहाँ पे आएगा। और जब प्रोसेसर उसको डिकोड करेगा तो प्रोसेसर को पता चलेगा कि मुझे कौन से रजिस्टर में वैल्यू मिलेगी, या मुझे कौन से रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर करवाना है। ठीक है, तो रजिस्टर का मतलब ये नहीं है कि ये खुद रजिस्टर है, बल्कि इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर का रेफरेंस गिवन होता है, यानी कि उसका बाइनरी कोड गिवन होता है। दिस इज इनडायरेक्ट बिट। ठीक है, कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को शो कर रहा है। देन दिस इज इंडेक्स रजिस्टर, के इंडेक्स रजिस्टर की को शो करेगा कि इंडेक्स रजिस्टर में यूज करना है, तो उसका बाइनरी कोड क्या है। देन दिस इज द मेमोरी एड्रेस, ये बिट नंबर 18 to 35 is showing the memory address. Then this is another example of PDP-11 instruction formats. इसमें बहुत सारे different instructions की examples हैं। ठीक है, numbers below fields indicate bit length। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपकोड सोर्स डेस्टिनेशन, ये सिंपल है जिसकी हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 4 बिट ऑपकोड है, 6 बिट सोर्स है, 6 बिट डेस्टिनेशन है। इसी तरह ऑपकोड आ गया, यहाँ पे रजिस्टर आ गया, एंड जनरल पर्पज रजिस्टर आ गया कोई भी, और ये दूसरा ऑपरेंड जो है वो सोर्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें ऑपकोड आ गया और डेस्टिनेशन आ गया। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है, तो जिसको इंक्रीमेंट करना है वो डेस्टिनेशन में आ गया ऑपरेंड, और ऑपकोड यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह दीज आर द एग्जांपल्स, यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट देम। Then this is the x86 instruction format. It is a bit complex. इसमें जो है वो हमें बिट्स के बजाय बाइट्स शो किए हैं, क्योंकि दिस इज अ लार्जर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये 0 और 1 का मतलब है बाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स है, फिर इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्सेस में इट कैन बी 0 1 2 3 और 4 बाइट्स। ठीक है, फिर इसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेगमेंट ओवरराइड, ऑपरेंड साइज ओवरराइड, एड्रेस साइज ओवरराइड। then these are the different options. We are not going into the details, because we just need to understand that how they are allocated. इनका फंक्शन इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए समझना, क्योंकि these are the older versions. ऑपकोड बिट्स आ गए फिर हमारे पास। अब ये क्या है, 1 or 2 बाइट्स। ऑपकोड में भी 1 or 2 बाइट्स लॉन्ग। So this is the complexity of the x86 processor. Then this is the mode is register or memory. Then scale, index and base. These all three are included here. Scale, index and base. Then displacement means offset, and this is the immediate operand field, कि अगर immediate operand होगा तो हमारा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। So this is an x86 instruction format uh, which we usually discuss. And यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स वो एंड होता है। And then we will our next chapter will be computer arithmetic.